وہ کاٹ کے بگ گئے تو کاٹ تو دیے تھے تم نے، بات تو کی نہیں، کاٹ تو دیے تھے. اب میں ذرا پڑھوں گا تھوڑا وہ ابھی کیا نام ہے. ارے کیا کرے گا پڑھ کے؟ کون سا تجھے جنت سے جانا ہے؟ تو کیا کیا جہنم میں کرو جائے گے گا؟ پڑھ کے؟ ابے کتنے جھوٹ بول بول کے لوگوں سے فتوے پوچھے گا؟ ارے تو کبھی جھوٹ تو بول ہی صبح رہا سے ہے، شام تو تک تو کبھی جھوٹ تو سچ بھی بولا بول ہی لے ہے کر. کہ میری امامت اس وجہ سے نہیں گئی ہے. کتنا جھوٹ بول رہا ہے تو. ارے مکۃ المکرمہ میں جو میں نے نماز جمعہ پڑھائی تو میں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ جہاں سب بدعقیدہ امام ہوں، سنی صحیح العقیدہ کی کوئی مسجد نہ ہو اور وہاں پر جماعت کثیر موجود ہو تو کسی گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے. میں نے تو اس میں اور احتیاط یہ کی کہ اس میں ظہر بھی پڑھی اور ظہر بھی پڑھائی لوگوں کو. دو جماعتیں پڑھائی تھی. اچھا یہ بتا، گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک. ارے امام اعظم کا مقلد ہے تو یا امام شافعی کا؟ اللہ حضرت نے لکھا ہے یہی احکام شریعت میں، جہاں گاؤں میں جمعہ ہو رہا بند نہ کیا جائے کہ امام شافعی کے نزدیک ہو جاتا ہے. ارے تو اس میں ظہر کی نماز کے فرض پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں اکیلے پڑھنے کا چاہ، اکیلے پڑھو، جماعت اچھا نہیں. خالی جمعہ پڑھو؟ نہیں جمعہ پڑھو ہو جائے گا گاؤں میں جمعہ؟ ظہر جہاں اکیلے پڑھو. گاؤں میں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں، مصر اور فنائے مصر ہوتا ہے گاؤں. اکیلے پڑھ لو ظہر 4 رکعت. ارے مصر اور فنائے مصر کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی اکیلے جاتی ہے ظہر جماعت سے نہیں ہوگی، ظہر جماعت سے نہیں ہوگی، نہیں تو دونوں نمازیں گڑبڑ ہو جائیں گی. دونوں جماعتیں غلط ہو جائیں گی. اگر دو جماعتیں کریں، جمعے کی الگ اور ظہر کی الگ، تو دونوں ہی گڑبڑ. تو دونوں ہی گڑبڑ. دونوں میں شک پایا گیا، دونوں میں شک ہو گیا کہ یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. کون سی کتاب میں؟ یا تو ظہر ہوئی یا جمعہ ہوا، شک ہو گیا. ابے شک الگ چیز ہوتی ہے، احتیاط الگ آج چیز کے ہوتی ہے. زمانے میں کبھی دو نمازیں نہیں ہوئی، ظہر اور جمعہ. مفتیان کے زمانے میں کبھی دو نمازیں نہیں ہوئی، ظہر اور جمعہ. احتیاط الگ ہوتا ہے اور شک اور الگ ہوتا ہے. بھی کبھی احتیاط دو الگ جماعتیں ہوتا نہیں ہے. کروائیں کہ ظہر پڑھو پھر جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھو ظہر پڑھو، ایسا کبھی نہیں کروایا انہوں نے. چلو اگر جماعت سے بھی پڑھ لی تو تیرے نزدیک وہ نمازیں دونوں ہی نہیں ہوئی. اچھا کیا جمعے کے دونوں جس نمازیں گاؤں میں نہیں ہوئی. جمعہ ہوتا ہے تو کیا وہاں ظہر اچھا یہ پڑھنا بتا، ضروری ہے دونوں جماعت نمازیں سے؟ نہیں ہوئی. نہیں، جماعت سے ظہر پڑھنا ضروری ہے جس گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے. ظہر کی نماز اگر جماعت سے پڑھے تو افضل ہے، اگر تنہا پڑھ لے جب بھی نماز ہو جائے گی. نہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر راجستھان میں کہیں نہیں پڑھتے. بالدڑا میں، بہت بوجا ساری کھیڑی میں. جگہوں پڑھتے ہیں. یو پی نہیں، بالدڑا میں، بہت ساری بوجا جگہوں کھیڑی پہ. میں کہیں بھی نہیں پڑھتے. نہ بالدڑا میں پڑھے، نہ بوجا کھیڑی میں پڑھے، ارے نہ آس یو پاس کے پی گاؤں میں میں پڑھے. بہت ساری جگہ پر پڑھتے ہیں. وہ یو پی میں بیوقوف بہت لوگ ہیں، ساری جگہ پر بیوقوف لوگ پڑھتے ہیں ہیں. جو پڑھ رہے ہیں، بیوقوف ہیں. اچھا تو ہی عقل مند ہے بس. تو دو جماعتیں پڑھیں گے، ایک ظہر کی ایک جمعے کی، ایک ہی وقت میں دو جماعتیں. اچھا یہ بتا کہ مسئلے کو توڑ مروڑ کے کیوں پوچھتا؟ کیا مسئلہ توڑ موڑ کے؟ کسی کو بھی عالم و مفتی اور محدث بنا دیتا. پوچھئے یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سوال کر کے تھانہ، اگر کوئی شخص حج کرنے جائے اور وہاں ہر مسجد میں امام بدعقیدہ ہو تو وہ جمعہ کیسے پڑھے؟ بدعقیدوں کے پیچھے جمعہ پڑھے یا مطلب اپنی نماز الگ پڑھے؟ کیا بتایا تجھے مفتی مطیع الرحمان نے؟ کیا بتایا؟ مفتی مطیع الرحمان نے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وہابی ہیں اور مشکوک ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے. تو انہوں نے جمعے کا کب بتایا؟ اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو کہاں پڑھے گا انسان؟ تو انہوں نے جمعہ کب بتایا کہ جمعہ پڑھو؟ ارے کہاں پڑھے گا؟ جمعہ کا سوال ہی کہاں کرا تو نے؟ یہ بتا کہ پھر جمعہ کہاں پڑھے گا انسان؟ تو پھر وہ تو کہتے قضا کر دو. جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی. ارے یہ مولوی تو کہتے قضا کر دو، وہاں پر نماز نہیں ہوگی، قضا کر دو، جمعہ قضا کر دو. قضا یہ تو فتویٰ دے رہا؟ ارے یہاں کے مولوی کہتے ہیں، میں تھوڑی. ارے کون سا مولوی؟ کس مولوی نے کہا؟ ایک مولوی کا نام بتا. کیا بتاؤں؟ یہ کہ وہاں مولویوں نے یہ کہا کہ جمعہ قضا کر دو، جمعہ پڑھو ہی بس. کس نے کہا؟ مفتی شمشاد کو لگا فون ابھی حال میں نمبر دوں 94-155-052-57. کسی کتاب میں لکھا ہوا بتا، کسی عالم کی تقریر بتا کہ کس عالم نے یہ کہا ہے کہ
वहाँ जुमा मत पढ़ो। कौन से आलिम ने कहा? अभी हाल में बता दो, मुझे अभी लगा रहा हूँ 05257। देखो उठा ले तो ठीक है। वो भी अभी लगा नहीं जरा मेरे वाले से, रुक जाओ। अब आदमी अगर कोई भी हज करने के लिए गया है और वहाँ मुकीम है और सारे इमाम बदअकीदा हैं मुश्तबे हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, तो इंसान वहाँ पर अगर एहतियातन जुम्मा पढ़ता है तो उसमें क्या गलती है? काय को पढ़ना जुम्मा? पता नहीं किसे मुफ्ती बना के पेश कर ये देता है। बताओ कि जब वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर हज़रत अली रहमत व रिज़वान की किताब में तुझे गलती कुरान लगती है। जहाँ नाजिल हुआ है, जहाँ से इस्लाम आया, वहाँ का आदमी मुसलमान नहीं होगा तो कहा मुसलमान होगा? अच्छा, जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो वहाँ अबू जहल नहीं था? अच्छा, जब कुरान नाजिल हो रहा था तो वहाँ अबू जहल और अबू लहब नहीं था? तो क्या ये अबू जहल है? उमय्या बिन खलफ नहीं था? नहीं, अबू लहब है वहाँ के इमाम। अभी के इमाम अबू जहल है क्या? मेरे इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ कुरान पाक नाजिल हुआ है। नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कुरान, जहाँ से इस्लाम आया, जहाँ की फजीलत, कुछ समझा जहाँ की फजीलत हदीस शरीफ में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 वजह से अरब से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, जन्नत वालों की जबान अरबी होगी। ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहाँ कुरान नाजिल हुआ वहाँ काफिर नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया अरब वालों से 3 वजह से मोहब्बत करो। अरे जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सवाल, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, जन्नत वालों की जबान अरबी होगी, ये हदीस पाक है। अरे तू नंबर है, इसीलिए तो तुझसे बात करने पागल है, बिल्कुल अहमक है। अल्लाह के ले जाता है कहीं से कहीं ले जाता है। अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई, 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। हर आलिम तेरी जिल्लत करता, तुझे जलील करता। अरे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक रोब के जरिए से। तो मस्जिद नबवी का नाम तो बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल करीब में। अरे इसका तो मैं तुझे कितनी बार जवाब दे चुका हूँ। अरे कितनी बार जवाब दे चुका हूँ। एक बार एक ही चीज का 36 बार थोड़ी जवाब एक बार ये कंफर्म बता दो, कंफर्म कि मस्जिद नबवी के इमाम को तुम मोमिन मानते हो काफिर? बस इसके बाद फिर नहीं पूछा जाता काफिर मानते हो मोमिन? एक बात बताओ। जो मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने जवाब दिया है वही मेरा जवाब है कि उनके मुसलमान होने में शुबा है, उनके मुसलमान होने में शुबा है, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। रहमान साहब पर हुसामुल हरमैन का फतवा लग जाएगा, मन शक्कर भी कुफरी वाज़ाबी बहुत कफर। जो उनके काफिर होने में शक्कर है वो भी काफिर। आला हक में लिखा है ना, ये मन शक्का, जो शक्कर थी आजादी उनके आजाद में, आजादी ही फकत कफर, तो वो भी काफिर। ये उनके लिए है जिन 5 पर आला हजरत अली रहमत व रिज़वान ने फतवा कुफ्र दिया है, उलमा हरमैन शरफैन ने फतवा कुफ्र दिया है, उनके बारे में, हर एक के बारे में नहीं। तो फिर जो अभी मौजूद है ये मुसलमान है, ये इमाम मुसलमान है माँ के काबे के मस्जिद नबवी के। जो मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब का जवाब है वो बिल्कुल सही है। अगर इमाम के मोमिन होने में शुबा हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। तो क्या माना जाए? फिर ये हाजियों का क्या किया जाए? जनाजा निकाल दिया जाए इनका जितने नमाज पढ़ा है जुमे की, सबको कह दिया जाए कि किसी की। मैंने तुझसे रात एक बात कही थी, अरे तू कौन सा हज करने जा रहा है? अरे ये नमाज पढ़ेगा उनके पीछे? तूने तो ये भी कह दिया जिसने 40 दिन की नमाज, तुमने तो ये भी कहा जिसने 40 दिन की नमाजें पढ़ी है सब दोहराए, 200 नमाजें दोहराए। बिल्कुल दोहराए, जब नमाज नहीं हुई तो दोहराए। तो फिर अब तुझे शक कर रहा, अब तू शक कर रहा, तू काफिर मान रहा इमाम को, काफिर मान रहा। अरे उनके पीछे नमाज नहीं हुई, जब नमाज नहीं हुई तो जो नमाजें पढ़ी वो बेकार है। अच्छा, जो मदीने शरीफ में जो लोग रहते हैं उनकी भी नहीं हुई? किनकी? वो जो वहाँ रहते हैं उनकी भी नहीं हुई? वहाँ जो सुन्नी सहीउल अकीदा लोग हैं वो उनके पीछे नमाज पढ़ते ही नहीं। वो कहाँ पढ़ते हैं? वो अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं, अपने अपने घरों में पढ़ते हैं। उनकी मस्जिदें कहाँ है? वो नाम तो बताओगे कि हवाई फायरिंग के ये मस्जिद है वहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा में एक मदरसा सोलतिया है, वो सुन्नियों का मदरसा है। रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का है, वहाँ तो सब देवबंद वालों का होल्ड है देवबंद वालों का। वहाँ हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मतलब ये कि हम अलग नहीं नमाजें अलग पढ़ते हैं, हमारा मदरसा अहले सुन्नत व जमात का मदरसा है। अच्छा, मस्जिद है वहाँ? किसकी? उनकी सुन्नियों की मस्जिद है अलग से, बरेलवी है। ऐसी बात तो होंगी मस्जिदें, बिल्कुल होंगी। नहीं होंगी क्या? बताओ ना, नाम बताओ।
अब क्या मैं हर गली हर खित्ते में थोड़ी घूम के आया हूँ। तुमने फिर जुमा अलग क्यों पढ़ा जब मस्जिदें थी सुन्नियों की? कहाँ पे तुमने होटल में जुमा क्यों पढ़ा? थी कहाँ है क्या नहीं। अब हम तो अजीजिया में रहते थे और वो कहाँ लोग वो लोग कहाँ रहते थे। वो देवबंद वालों का हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहज्जिम मक्की के खलीफा थे। वो तो सौलत साहब तो कौन वो सौलत ये जो मदरसा वो तो हाजी इमदादुल्लाह साहब के खलीफा थे। हाँ तो वो तो लोग तो सुन्नी है तो खलीफा वो आए थे हमारे होटल में। तो हाजी होटल में भी आए थे हमारे उनसे मुलाकात हुई। साहब के खलीफा थे। और जिन लोगों पे दम वाजिब हुआ था उनके पैसे हमने दिलवाए उन्हें कुर्बानी के लिए। और तुम्हारे जो दादा उस्ताद हैं वो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी। हैं किसके दादा उस्ताद? तुम्हारे दादा उस्ताद है मुफ्ती शाहिद मियाँ के उस्ताद है मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा तो क्या हो गया? वो तो मोमिन है ना, सुन्नी है मुफ्ती वजीउद्दीन साहब। आदमी जरा कितने लोगों के पास पढ़ता है, कुछ जरूरी है कि सब सुन्नी हो? तो क्या सुन्नी नहीं थे वजीउद्दीन साहब? अबे स्कूल में जने कितने लोगों के पास आदमी पढ़ता है तो वो क्या सब सुन्नी है क्या? तो क्या शक की बात में शक करोगे? शक करोगे? ये भी शक करोगे कि साथ जामे अज़हर वाले भी सुन्नी नहीं है, मक्का शरीफ वाले भी सुन्नी नहीं है, मदीना शरीफ वाले भी सुन्नी नहीं है। फिर काके लोग कैसे मुसलमान मानोगे? ये तो बताओ, कन्फर्म कैसे मुसलमान मानोगे? तेरे नजदीक तो अशरफ अली थानवी भी मुसलमान है, कासिम नानोद भी मुसलमान है, खलील अहमद अमेठवी भी मुसलमान है, रशीद अहमद गंगोही भी मुसलमान है और गुलाम अहमद कादियानी भी मुसलमान है। क्या कादियानी मुसलमान है तेरे नजदीक? नहीं, ये बता, क्या कासिम नाथी साहब ने कभी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया? कभी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया कासिम नाथी साहब ने? तो सभी मुसलमान है। काजी ने तो अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाया, लब्बैक या अफ्तार के नारे लगवाए। अब मुझे खुशी होती है कि मैंने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा, फिरक़े ज़िंदगिया का बानी और मोजिद। फिरक़े ज़िंदगिया का बानी और मोजिद, सही नाम रखा है मैंने बिल्कुल। इनका मेन मकसद है कि आला हज़रत को मानो तो मुसलमानों, नहीं तो काफिर हो। ये है बरेलियों का अकीदा है, हकीकत बात। मैं जो बता रहा हूँ ये कन्फर्म है कि इसके पीर ने रद्द किया है इसका इलियास का, लेकिन ये मानते हैं। मुल्ला अजहर तो थोड़ा सोच तो कम से कम तो कोटा में आता था, स्टेज पे बैठता था, मानता है और स्वागत होता था। देखो आप तो खिताब ये इसके पीर तकरीरें करता था, लेकिन ये नहीं मानेगा। आज तुझे पता नहीं कौन से गड्ढे में घूम दिया आपने, फिर भी तो नहीं सुधरा। उस्ताद की बात, उस्ताद की बात। आज मतलब ये कि जैसे कौन से गड्ढे में हमने तुझे घूम दिया, कभी प्यार मुस्तफा फिर भी आधा मिनट आज भी तुझे पता नहीं। सुनाओ। अरे क्या सुना रहा है? अरे ये इलियास काजी के बारे में कह रहा है, नजदी इमामों के बिदात अरे तो मैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में क्या बात कर रहा हूँ? तो क्या मानते हो इलियास काजी को? क्या मानते? तूने अभी एक गुफ्तगू करते हुए कितना झूठ बोला। क्या बोला? वो कोई मौलाना यूसुफ मंजरी से जो तू बात कर रहा था, कितना झूठ बोला उससे कि वो तो दावत इस्लामी के बारे में ये मानता है और उसको ये मानता है और फला को ये मानता है, फला को ये मानता है और उसको देवबंदी मानता है, उसको काफिर मानता है। मैंने तो उससे कभी कहा कि मक्का और मदीना के जितने लोग हैं सब काफिर हैं? हाँ कसम खुदा की, और कह दे कि मैंने तो उससे कभी कहा हो। अच्छा तू कसम खुदा की कहा कह दे कि मैं काबे के इमाम को काफिर नहीं मानता। मैंने कब कहा काबे के इमाम को काफिर? तो जब काफिर नहीं मानता तो जुमा अलग क्यों पढ़ा? जब काफिर नहीं मानता अलग जुमा क्यों पढ़ा? अबे बेवकूफ, जुमा अलग पढ़ना अलग बात है, काफिर मानना अलग बात है। मैंने कब कहा काफिर? बता। तो जब काफिर नहीं था वो मुसलमान थे, जब वो मुसलमान है तो जुमा अलग क्यों पढ़ा? होटल में क्यों पढ़ा? एक मिनट मेरी बात सुन, अब एक मिनट मेरी बात सुन। अल्लाह के नमाज पढ़ लो। सुन तो, अरे सुन तो, तूने उनसे ये कहा कि मक्का और मदीना के जितने लोग हैं उन सबको इदरीस रामपुरी काफिर मानता है। अगर वाकई मैंने ये लफ्ज कभी कहा है कि मक्के और मदीने में जितने लोग हैं सब काफिर हैं, या मक्के और मदीने के किसी आदमी को मैंने काफिर कहा हो?
तो तू मेरी एक क्लिप दिखा दे या एक बात भी दिखा दे। तूने कहा 40 दिन की नमाज धो रहा है, 40 दिन की नमाज धो रहा है तो काफिर मानना तो हुआ। के अपनी 40 दिन आखिरत की क्यों नमाज खराब धो कर रहा रहा है? हो तो काफिर मानना ही अरे चाहिए। तेरी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो गई। नहीं, जब क्यों तूने इतना कहा कि झूठ बोलता 40 है? दिन की नमाजें धो रहा हो उनके पीछे, तो काफिर मानना ही तो हुआ। अच्छा ये बता कि इतना झूठ बोल के तो क्या हासिल करना चाहता है? नहीं ये बता, इतना झूठ बोल तूने के नहीं, तू खुद तेरे कह रहा है कि नजदीक हाँ झूठ मैंने कहा बोलना, था 40 दिन की तेरे नमाज धो रहा हूँ। नजदीक झूठ तू बोलना खुद सही कह है रहा है कि क्या? हाँ मैंने कहा था अल्लाह 40 कुरान में दिन की फरमाता नमाजें है, धो या रहा हूँ। तूने खुद कहा ये बात तो। अय्युहल्लज़ीना वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए और ईमान अभी वालों तू ये अल्लाह भी से कह रहा डरो था उनके अकीदे और अब्दुल वहाब के सीधी नजदियों सच्ची के बात अकीदे बोलो। पे हैं, या इब्ने हैं? अब्दुल वहाब के नजदीक, यानी क्या क्या कह रहा था कि उनके अकीदे ऐसे हैं वैसे हैं। तू ये बात, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तो एक बार भी ये दिखा दे कि मैंने कभी ये कहा हो कि मक्का और मदीने के लोग काफिर हैं। बता। नहीं, वहाँ के इमाम कब कहा तू? एक भी क्लिप में तो कुछ तो कितनी भी बता कि तेरी मैं मेरी उन्हें गुफ्तगू ये मुसलमान बताना। मानता हूँ या काफिर, दो में से एक बात बता। मैं तो मोमिन मानता हूँ। तूने तो मुफ्ती यूसुफ मंजरी से ये कहा कि मौलाना इदरीस रामपुरी जो है वो मक्का और मदीना के तमाम लोगों को काफिर मानता है। तू अगर इसको साबित कर दे तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। काफिर नहीं मानता। अरे तो कितना बड़ा पापी है, अरे कितना बड़ा पापी है अरे तो तू कहते मेरी समझ में नहीं आता कितना बड़ा झूठा है यार। मानता हूँ, ये तो कह दे वहाँ के इमामों ये को बता मैंने कब कहा? अरे मैंने कब काफिर कहा उन्हें? कब कह रहा है कि वहाँ के इमामों को मैं मुसलमान मानता हूँ? ये भी कब कह रहा है? अरे वो तो मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके मुसलमान होने में शुबा है। जो उन्होंने कहा मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने, वही मैं कह रहा हूँ। और उनके शुबा होने की वजह से, उनके मुसलमान होने में शुबा होने की वजह से हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना अलग बात है, काफिर मानना अलग बात है। उनको माना क्या जाए, काफिर या मुसलमान? अरे बेवकूफ, हम तो हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदों को भी काफिर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमराह कहते हैं, बददीन कहते हैं। अच्छा, काफिर नहीं कहते सबको। बददीन के माने बुरे दीन वाला। इसलिए अवाम को जो है, जो अवाम है उनमें से किसी पर भी हम कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, न कोई सुन्नी लगाता है। मगर ये तेरी जहालत है कि तू सरासर झूठ बोल के वहाँ के इमामों को क्यों काफिर मानते हो तुम लोग? कहाँ के इमामों को काफिर मानते हैं? किसने कहा? किसने कहा मदीने के इमाम काफिर? मैंने जुमा अलग पढ़ा, होटल में पढ़ा। अरे तो जुमा अलग पढ़ना क्या, उससे उनको काफिर कहा क्या हमने? क्या हुक्म नहीं है यार कि सल्लू कमा फासिकिन है? तो उन्होंने मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया? हाँ, तो उन्होंने कहा जुमा पढ़ सकते हैं अगर कहीं कोई कहा। अरे कितना बड़ा झूठा है, जुमे कब पढ़ सकते हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मतलब ये कि मक्का और मदीने के जो गैर मुकल्लिद वादी इमाम है उनके पीछे जुमा पढ़ सकते हैं, ये कहा उन्होंने ये कहा वहाबी हैं। मैंने कहा मुसलमान तो हैं। दोनों का नहीं मुसलमान नहीं माना। उन्होंने भी मुसलमान नहीं माना। तो उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है? नहीं, उन्होंने मुसलमान कब माना? ना मुसलमान माना ना उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा उनके मुसलमान होने में शुबा है, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। शुबा किस बात का शुबा है? अरे उनके मुसलमान होने में शुबा है। शुबा किस वजह से है वो तो बताओ ना, कुछ वजह हो? उनके अकायद की वजह से। क्या है अकायद? जो भी गैर मुकल्लिद वाबियों के अकायद बताओ। अगर ऐसे गलत होंगे तो मैं अभी हल काफिर कहूँगा। अरे तुझे तो देख ऐसा है, अगर उनके कुफरी अकायद होंगे तो मैं अभी हाल इसी ऑडियो में काफिर कहूँगा। बताओ उनके अकायद बताओ, उनके अकायद बताओ। कुफरी अकायद हो इमामों के, तो मैं अभी गैर मुकल्लिद और वहाबियों के अकीदे ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, न जाती न अताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। दो, और उनका अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं। 3, वो ये मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे ही मानो जैसे कि आम इंसान को मानते हो, बस ये फर्क है कि उनके पास वही आती है। 4, और बहुत सारे अकीदे हैं उनके। हजरत इमाम हुसैन को वो बागी मानते हैं। अच्छा 5। और ये कहते हैं बागी माने वो तो काफिर है कि वो आतंकवादी। जो बागी माने वो तो काफिर है, जो आतंकवादी माने वो काफिर है। बताओ अगर तो इमामों का यकीन है वहाँ के मक्के शरीफ मदीना शरीफ के इमामों का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी थे या आतंकवादी थे,
जैसा तुम कह रहे हो, फिर तो काफिर है। अरे ये तो गैर मुकल्लिदों का हाथ, तुमको यही किसी गैर मुकल्लिद को बुला के पूछ ले नहीं, वहाँ के इमाम क्या सच कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी हैं, वहाँ के इमाम कहते हैं। तुम यजीद को हक पर मानते हो या इमाम हुसैन को हक पर मानते हो, कहेगा भी गैर मुकल्लिद वो ये कहेगा हजरत यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहेगा, खलीफतुल मुस्लिमीन कहेगा, अमीरुल मोमिनीन कहेगा। कौन कह रहा है? हर गैर मुकल्लिद कहता है। कहेगा तो मरदूद कहा जाएगा। तूने तो आला हजरत की बातें सुनी है और क्या सुना है? आला हजरत ने लिखा है सफर 27 में जिल्द सोम में अंबे किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। अरे ये तो घिसा पिटा सवाल हो गया। उलमा इकराम ने इसके लिए खूब जवाब दे दिए, अब इसको रगड़ता रहे, उसका क्या है? नहीं, कैसे मुलाकात होती है? मुलाकात रूहानी होती है, जिस्मानी होती है? अरे ये सब घिसे पिटे सवाल है जो बहुत दिनों से कर रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है। ये तो बताओ, रूहानी मुलाकात होती है जिस्मानी? अब मेरी बात सुन, जो तूने झूठ बोला उसका जवाब दे। मौलाना यूसुफ मंजरी से जो तूने झूठ बोला कि जो तूने कहा कि इदरीस रामपुरी ने मक्का और मदीने के तमाम लोगों को काफिर कहा है, तो साबित करके दिखा दे। और अगर तू साबित नहीं कर सकता तो ये मान ले कि मैं दुनिया का ज़लील-तरीन इंसान हूँ। नहीं पढ़ी, तुमने खुद इकरार किया है। नमाज ना पढ़ना किसी को काफिर कहना है क्या? मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, शुबह के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालों ज्यादा ख्यालों से बचो, इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, ज्यादा बेशक बात गुनाह है। कुरान में बात ख्याल गुनाह है। तजस्सुस, जासूसी मत करो। हाँ तो बिल्कुल हक है। अब इमाम हरम के बारे में तुम जासूसी कर रहे हो, शक कर रहे हो, शुबह कर रहे हो कि काफिर होगा या मुशरिक होगा या मुसलमान होगा। ये तो शुभ करना, ये तो कुरान में मना है। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि मोमिनों के नजदीक अच्छा गुमान रखो। वहाबिया के जो अकीदे हैं, गैर मुकल्लिद वहाबिया के जो अकीदे हैं, उसकी बुनियाद पर उनका ईमान मशकूक है। तो कुछ बताओ तो सही कि ये क्लियर अकीदा इमाम हरम का है, मस्जिद नबवी के इमाम का अकीदा है। इतनी सारी चीजें मैंने सब बता दी, लेकिन तूने जो ये लफ्ज कहा कि इदरीस रामपुरी जो है मक्का मदीना के तमाम लोगों को मुसलमान नहीं मानता, ये तूने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, तो साबित करके बता। मुसलमान नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% मुसलमान नहीं है। साबित करके बता। तूने मेरा नाम लिया है कि इदरीस रामपुरी ने कहा। साबित कर दूंगा। अरे साबित करके बता। 10 टिकट उम्रे के दूंगा मैं, 10 टिकट तेरे साथी कर ले, 10 में लेके चलूंगा। मेरा भी पासपोर्ट बन गया, 10 टिकट में दूंगा और आकर मैं गुलाम बनूंगा। अगर फतावा रज़विया से वहाँ के जितने भी रहने वाले, इमाम नहीं बल्कि जितने भी रहने वाले हैं, सबको फतावा रज़विया से अभी फतावा रज़विया की बात नहीं हो रही है। अभी तो तूने जो सही झूठ बोला है, सुबह किसी का निकाह नहीं हो रहा पूरे अरब में, एक का भी निकाह नहीं हो रहा। झूठ बोला है, मदीना शरीफ में नहीं, पूरे अरब में एक का भी निकाह नहीं हो रहा। ने ये कहा है कि मक्का और मदीने के तमाम लोग काफिर हैं, वो साबित करके बता मेरे कब है। निकाह में गवाह का मुसलमान होना शर्त है। मक्के और मदीने के तमाम लोग काफिर हैं, मैंने कहा पढ़ा सकता है। आला हज़रत ने लिखा है निकाह तो बामन भी पढ़ा सकता है, लेकिन गवाह तो मुसलमान होना जरूरी है। अब मक्का शरीफ में गवाह काफिर आओगे बरेलवी, वहाँ तो सब वहाबी गवाह बनते हैं, जिनको तुम वहाबी कहते हो। सब वहाबी है। अरे वहाँ पे बहुत सुन्नी है, बहुत सुन्नी है। मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी बहुत सुन्नी है, उनकी कोई मस्जिद तो हो। नहीं, कहाँ है मस्जिद का? जब इमाम सुन्नी नहीं है तो वो सुन्नी कहाँ से हो जाएंगे? वहाँ के रहने वाले लोगों के घरों में, वहाँ लोगों के घरों में मिलाद शरीफ होते हैं, खत्मे कादरिया अरे कहाँ होते हैं, किस सारे प्रोग्राम होते हैं। वो बरेलवियों की तरह नहीं है, होते हैं बरेलवियों की तरह नहीं है। अरे बरेलवी हो ना हो, सुन्नी है, सुन्नी बरेलवी नहीं है। वो सुन्नी तो हम भी है, सुन्नी तो देवबंद वाले भी हैं, सुन्नी तो नदवा वाले भी हैं, सुन्नी तो जामे अशर वाले भी हैं। ना तो सुन्नी है, सुन्नी तो मतलब ये कि तेरे चेहरे सुन्नी है, खानका सौलतिया जो अरब में वो भी सुन्नी है, और फिरका जिंदगिया का बानी है। फिरका इदरीसिया चला रहा तूने खुद कहा कि जिसने अहमद पटेल के लिए दुआ की वो उसने कुफ्र किया। जो कांग्रेस का लीडर था, कोटा में पूछना
मैंने कहा मौलाना सईद मुख्तार साहब से पूछ ले किसने दुआ की थी, कितना मुफ्ती झूठा यामीन है, साहब चंबल गार्डन वाले से पूछ ले कि कितना अहमद झूठा पटेल है, अल्लाह देवबंदी के लिए अकबर। किसने कोटा में दुआ की है, किसने कुरान खानी की ये है? बता, मैंने मेरे ये दो कब के कहा नाम कि बता अहमद दिए पटेल के लिए तुझे, जिसने मुफ्ती दुआ की यामीन वो साहब काफिर चंबल है, गार्डन, कब कहा बता। मौलाना सईद मुख्तार अबे साहब से झूठे, शक्ल है यहाँ पर, अल्लाह उनसे पूछो कि अकबर, किसने दुआ की थी अहमद पटेल साहब के लिए यहाँ पर, अबे कुरान खानी कितना किसने की थी? बड़ा झूठा, कितना बड़ा अहमद पापी पटेल आदमी है। कट्टर देवबंदी है, कट्टर अबे देवबंदी। ये बता, तेरे दिल में खुदा का खौफ रहा थोड़ा बहुत के नहीं रहा? नहीं, तूने खुद कहा कि जिसने अहमद पटेल के लिए दुआ की कुफ्र किया। मैंने कब कहा? ये मेरी रिकॉर्डिंग में तूने दिखा ये देगा कहा तू? कि देवबंदी के लिए अरे जिसने दुआ कितना की। बड़ा झूठा नहीं, है वो, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा अरे पापी ये है तूने कहा था ना कि अहमद, मैंने ये नहीं, कहा तूने- कि मैंने ये कहा कि जो देवबंदी अपने अकीदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है, उसके लिए दुआए मगफिरत और बख्शिश करना कुफ्र है, ये कहा मैंने। हाँ, ये कहा था ना। हाँ, तो अहमद अबे पटेल तो वही कितना था, बड़ा देवबंदी झूठी था। है। अबे अहमद पटेल तो अबे देवबंदी मुल्ला था, अजहर, गुजरात वाला, जो अबे कांग्रेस मुल्ला का अजहर लीडर तो था। कितना बड़ा झूठा है रे, कितना अरे बड़ा तो झूठा बात है तो यार। वही हो रही है ना अहमद तो पटेल के लिए। पापियों का पापी, महापापी है यार, तो कितना बड़ा झूठ है। अच्छा, सुबह ये से तो शाम तूने तक इकरार कितने किया झूठ ना, मैंने बोलता है। देवबंदियों के लिए कहा था, ये तो इकरार किया। हाँ, देवबंदियों, मैं हर देवबंदी के लिए नहीं, शर्त देख रहे उसमें, क्या? जो देवबंदी अपने अकीदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है, हाँ, हाँ। और उसके कुफर पर वाकिफ होकर जानबूझकर कोई उसके ये जाने कि हाँ इसके अकीदे कुफरिया हैं, हाँ। और फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करे, वो है। अच्छा, जो मैंने ये देवबंदी कहा। वो अकायद नहीं जानते हो, वो तो देवबंदी मुसलमान है। हाँ, वो देवबंदी मुसलमान है, उनको कौन काफिर कह रहा? और ये लोग उनको भी काफिर कहते हैं। कौन कह रहा है? ये बहुत से सब कोई नहीं कह देवबंदी, रहा, सब देवबंदी काफिर है, ऐसा अबे कोई कहते नहीं हैं। कह रहा अहमद, अबे चलो, कोई अच्छा, नहीं कह रहा, तुमने- तू बेवकूफ, अच्छा, तू हज़रत अपनी मौलाना आखिरत खराब क़ाज़ी कर रहा अनवर झूठ साहब बोल के। की नमाज जनाजा सबने पढ़ी कोटा वालों ने। अबे झूठे कहीं के, अब फिर इधर आधे घुमाने लगा, तो सही से तो बात करता नहीं। अब ये नहीं, जाहिलाना तूने भी तो सुन्नी माना था क़ाज़ी अनवर साहब को, तूने तेरी रिकॉर्डिंग आई थी, कौन करेगा? तेरी भी रिकॉर्डिंग आई थी कि क़ाज़ी अनवर साहब की नमाज पढ़ से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। वो तो भाग गया। कृपया लाइन पर बने रहे। साहब का नाम तो The person you are speaking